Good evening, everyone. So I will start now. I hope you all are okay with the second chapter. Please start solving your numericals. Wednesday we will discuss whatever doubts you will be having. Okay, today we will start with a new chapter, which is called as ionic equilibria. Am I audible to everyone? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, Okay, miss. okay, okay, okay. Okay, so we'll start with the ionic equilibria. In this also we have lots of numericals to solve and everything. Okay. So first of all, इक्विलिब्रिया यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रिया इक्विलिब्रिया का मतलब एक्चुअली वो इक्विलिब्रियम ही है ठीक है व्हेन इट इज इन द प्लूरल दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रिया ठीक है now you have studied so many types of equilibrium physical equilibrium chemical equilibrium अब आप पूछोगे कि मिस ये नया क्या है ये नया है ionic equilibrium ठीक है इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत ही सिंपल और अच्छे वाले सारे डेरिवेशन है जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे दे आर वेरी वेरी सिंपल ठीक है सो आयनिक इक्विलिब्रियम मीन्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ठीक है पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज cations एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज anions कुछ भी नहीं समझेगा तो प्लीज पूछ लेना बच्चों ठीक है so in if you are having an equilibrium between this ionized solution and unionized solution जैसे कल मैंने आपको बताया था AXY BY gets dissociated as AX plus Y BY minus ऐसा किया था ना हम लोगों ने कल तो जब इसके और इसके बीच में इक्विलिब्रियम हो जाता है किसी ने मुझे पूछा भी था कि why it is reversible because it attains the equilibrium ठीक है so because of that when there is an equilibrium between ions and unionized molecules in the solution that time it is called as ionic equilibrium समझा मैं वापस से बोलती हूँ when you are having ions if you are going to take any solution कोई भी solution लिया मैंने जैसे कि HCl लिया कल भी मैंने बताया था when I will take HCl I will put it in the water यहाँ पे सपोज 10 मॉलिक्यूल थे 10 के 10 तो ब्रेक नहीं हुए करेक्ट तो जितने ब्रेक हो गए तो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर कॉल्ड एज ionic equilibrium there is an equilibrium between these two that is called as ionic equilibrium ठीक है दिस आयनिक इक्विलिब्रिया का प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली सिमिलर एज केमिकल इक्विलिब्रियम देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दिस सो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ठीक है suppose I'm going to take here an example of water so water will dissociate as H plus and OH minus ions Siddhant please mute yourself beta Siddhant Jadhav please mute yourself okay ठीक है so H plus and OH minus ions, correct? H plus and OH minus ions. So when there is an equilibrium between these two, this is unionized, this is ionized. So that is called as ionic equilibrium of water. This is called as unionized water. Okay? Now, ionization of weak acid and weak bases are very simple. So in this chapter, we are going to study so many things we are going to study one by one. ठीक है तो कल ही मैंने शायद पहले आपको बताया है what are electrolytes I hope you all understood this electrolytes should I repeat this again or you all understood what are electrolytes कोई मुझे बता सकता है what are electrolytes can anyone tell me what are मैंने बहुत बार पढ़ा है तुम लोगों को solution वाले चैप्टर में The what are compounds, electrolytes when dissolved in solvent, break into ions. very good absolutely correct very good Kanaya whenever you are having a solution Dissociate. dissociation very good absolutely correct so whenever you are having देखो confuse मत होना electrolytes non electrolytes में बहुत फर्क होता है electrolytes भी पानी में dissolve होता है non electrolyte भी पानी में dissolve होता है तो dissolution is not the criteria what is the criteria to form the ions means positive and negative ions बनने चाहिए if you are forming more number of positive and negative ions that time it is called as strong electrolytes ठीक है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या है देखो शॉर्ट में लिखती हूँ substances which dissociates in the form of their ions in aqueous solution देखो चार वर्ड लिखा है substances that dissociates in the form of their ions in the aqueous solutions are called as electrolytes बराबर ठीक है अब इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के थे टू टाइप्स के फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अनदर वन इज कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट बराबर
What is strong electrolyte over here? Substances that dissociates in the form of their ions in the aqueous solution to greater extent. समझ गया सबको? मैक्सिमम हो गया ना, टू द ग्रेटर एक्सटेंट. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या आएगा बोलो? substances that dissociates in the form of their ions in the aqueous solution to lesser extent. देखा, एक लाइन याद किया तो तीनों डेफिनेशन हो गया ना. substances that dissociates in the form of their ions in the aqueous solutions are called as electrolytes. Electrolytes are of two types. First is called as strong electrolyte. Another one is called as weak electrolyte. ठीक है? What are strong electrolytes? The substances that dissociates to the greater extent, or you will say almost completely. ठीक है? Almost completely in the aqueous solutions are called as strong electrolytes. Electrolyte वापस repeat करूँ. देखो ऋषि क्या लिखा है मैंने? Substances that dissociates in the form of their ions in the aqueous solution. ये चार वर्ड लिखे हैं ना, इसको खाली सेंटेंस में कन्वर्ट करो. Substances that will dissociate or break up in the form of their ions in the aqueous solution are called as electrolytes. मतलब if you are going to put anything into the water, it should form positive and negative ions. देखो शक्कर भी पानी में डिसॉल्व होती है, बट वो आयंस नहीं बनाती है. यू कैन नॉट से इट इज C+, H+, O2-, so it is not correct. बराबर. But electrolytes do form the ions in the solution. Suppose I will take Na+ and Cl-, तो ion बनेगा ना पानी के अंदर, H+ and Cl-, so they are called as electrolytes. और जब ये ज्यादा electrolytes बनते हैं, sorry ज्यादा ions बनते हैं, that time they are called as strong electrolytes. And when there are less number of ions, they are called as weak electrolytes. Now अभी ये याद रखो, all the strong acids and strong bases are strong electrolytes. ठीक है? All the weak acids and weak bases are weak electrolytes. Is it clear? All the strong acids and strong bases are strong electrolytes. All the weak acids and weak bases are weak electrolytes. अब non electrolyte क्या होता है? What are non electrolytes? कौन बताएगा मुझे? The electrolyte which will not dissociate at all. ठीक है? Not dissociate at all in the aqueous solution are called as weak non-electrolytes. बराबर. जैसे मैंने क्या लिखा? यूरिया. यूरिया पानी में डिसॉल्व होता है, yes, पर आयंस बनाता है क्या? नहीं बनाता है. So it is called as non-electrolyte. I hope it is very clear क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है. इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेस थ्योरी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सारे वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे तो पूरा चैप्टर ऊपर से जाएगा. समझ आया सबको अच्छे से? Yes, अभी मैं ना, हाँ अभी मैं कुछ डायग्राम्स ड्रॉ कर रही हूँ ABCD करके. तुम लोग उसको डिस्टिंग्विश करो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है और कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है? फर्स्ट वन, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4. ठीक है? और यहाँ पे सपोज अभी ये इमेजिन करो कि देयर आर 2 इलेक्ट्रोड और इसके ऊपर बल्ब मैंने डाला है. ठीक है? सेकेंड वन, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH. थर्ड वन, aqueous solution of acetic acid. Fourth one, aqueous solution of ammonium hydroxide. Fifth, ये यहाँ पे लिखती हूँ, aqueous solution of NH2CONH2. Next is, this is the aqueous solution of HNO3. चलो ठीक है, HNO3. Then aqueous solution of KOH. ठीक है? This is A, B, C, D, E, F, G. ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब इनमें से you have to distinguish them in strong electrolyte, weak electrolyte and non electrolyte. आएगा करने के लिए क्या बोला था मैंने? देखो, all the strong, hint देखो, all the strong acids and strong bases are strong electrolytes. All the weak acids and weak bases are weak electrolytes. Non-electrolytes will not dissociate at all in the aqueous solution. ठीक है? So they are called as non-electrolytes. इतना clear हो गया? ठीक है? चलो अभी फटाफट से इसको distinguish करो. मेरा question ये है कि कौन से वाले बीकर में बहुत अच्छे से बल्ब जलेगा, कौन से वाले बीकर में हल्का फुल्का जलेगा और कौन से वाले बीकर में एकदम जलेगा ही नहीं. ठीक है? So you have to distinguish
and you have to give me your answer. You will get only 2 minutes to solve this. Ready? चलो फटाफट करो and give me your answer. पहले strong electrolyte का लिखो, कौन सा strong electrolyte है? Sorry यार, ये निकल गया. चलो, I've got some answers. क्या लिखा है तन्वी आपने? चलो फटाफट करो. Done? Okay, Megha is done. I hope you all can distinguish all these. All the strong acids and strong bases are strong electrolytes. चलो हो गया, मुझे लगता है काफी लोगों का. डन बच्चों? अभी नेट पे जाके ये सब ढूंढो मत, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, इतना पता होना चाहिए अभी. ओके, चलो आई विल आस्क क्वेश्चन नाउ. कौन आंसर करेगा? प्रणीता शिंदे. फर्स्ट वन, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट. फटाफट बोलो आप. हेलो हेलो हेलो, am I audible to everyone? हेलो. Yes, ma'am. हाँ तो आंसर तो करो. हेलो. ठीक है. हाँ ठीक है. स्ट्रॉन्ग मैम. वेरी गुड. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. फटाफट आंसर करो, और टाइम नहीं है इतना रुकने तक का. चलो, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ए इधर चला गया. नेक्स्ट वन, NaOH. मेगा, व्हाट इज NaOH? स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन? Strong. Strong electrolyte. Very good, because it is a strong base. Next one, urea. Who will answer? Kanaya. What it is? Non-electrolyte. Very good. C is non-electrolyte. Next, Yash. Aqueous acetic acid. Strong, weak or non? It's weak. Very good. Weak acid. कैसे पता चला? क्योंकि weak है ना. So ये हो गया D. Next, ammonium hydroxide. Kashish. Ammonium hydroxide. वीक. Very good. Weak. So E will come over here. E नहीं, E ना? हाँ, E बराबर. चलो next, दिवेश. Nitric acid. Hello, are you there? ठीक है, चलो दीप. Nitric acid. Which electrolyte? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है नाइट्रिक एसिड. स्ट्रॉन्ग Yeah, इलेक्ट्रो ma'am. कौन सा? Non-electrolyte. Strong. स्ट्रॉन्ग. हाँ स्ट्रॉन्ग. अच्छा, मैं डर गई, मैंने बोला नॉन किधर से बोल रहे हैं. ठीक है, करेक्ट करेक्ट. ओके, लास्ट वन. ठीक है, अभी ये कौन आंसर करेगा? अनिरुद्ध. KOH. हेलो हेलो. ठीक है, चलो. प्रियंका भगत. व्हाट इट इज? KOH कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? हाँ, कौन सा है? Strong electrolyte. Correct. So your G will also come over here. So these will dissociate to the greater extent. This will dissociate to the lesser extent.
and will not dissociate at all. So strong electrolyte, weak electrolyte is clear, I guess. ठीक है? Now when you're writing about weak electrolytes, always there has to be a reversible arrow because it indicates that reaction has not been completed. ठीक है? Sometimes it happens that it will dissociate partially. So diluted solution में number of ions बहुत कम रहते हैं और बाकी के ions बहुत ज्यादा रहते हैं. ठीक है? मतलब unionized काफी ज्यादा रहता है. ठीक है? So that is why we are putting this double-headed arrow. Now next part we will do over here degree of dissociation. अभी ये मैंने कल ही पढ़ाया है आपको. ठीक है? What is degree of dissociation? It is always represented by alpha. It is nothing but number of moles dissociated. चाहिए तो ये लिख के रखो खाली Total formula. number of moles. Divided, yes, correct. Total number of moles present. ठीक है? Total number of moles. कल ही किया था हम लोगों ने. And alpha is always percentage में निकालते हैं तो alpha is always multiplied by 100. ये ध्यान में रखना. ठीक है? अच्छा, अगर strong electrolyte हुआ, ठीक है, तो alpha क्या आएगा? For strong electrolyte, alpha will be approximately equals to 1. For weak electrolyte, alpha will be much lesser than 1. और non electrolyte का alpha होगा क्या? Alpha होगा ही नहीं ना, because it will be Approximately equal to 0. yes, 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पर कुछ ions ही नहीं बने. That is why we will not consider that. इतना clear हो गया बच्चों सबको? I hope it is very clear. मैंने कुछ पार्ट तुम लोग को पहले ही पढ़ा दिया है तो थोड़ा ये तुम लोगों का सिर्फ रिविजन है. अभी जैसे हम पढ़ेंगे एसिड बेस थियरी, तो एसिड बेस थियरी भी मैंने आपको काफी हद तक पढ़ा दिया है. अरेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लुईस एसिड थ्योरी, तो वो तुम लोगों को पता है, तो मैं सिर्फ रिवीजन ले लूंगी. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रिया? व्हेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड सॉल्यूशन एंड अनआयोनाइज्ड सॉल्यूशन, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है? आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के हैं? 3. strong, weak and non-electrolyte. Then we have studied degree of dissociation, which is alpha. Alpha क्या represent करता है? It measures the extent of dissociation. ठीक है? और in other words, it is the ratio of number of moles of ions dissociated divided by total number of moles of ions present in the solution. It is always represented in percentage. So whatever we are going to get, alpha will be always multiplied by 100. अभी जैसे कल हमने किया था अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सी किया था ना, तो एट इक्विलिब्रियम अल्फा इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय सी. सी मींस इट्स कंसंट्रेशन. याद आ गया? कल हमने किया था अल्फा इंटू एक्स, अल्फा इंटू वाई, है ना? तो वैसे यहाँ पर अल्फा इंटू सी, वेयर सी इज योर कंसंट्रेशन. दिस पार्ट इज क्लियर? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? जस्ट गिव मी अ क्विक yes. इज इट वेरी क्लियर? ओके, ठीक है. अब हम जाएंगे नेक्स्ट थ्योरी की तरफ. तो इसमें हम लोगों को 3 और कौन सा एसिड है? एक मिनट देखो, मेरे को चेक करने दो. हाँ ठीक है, तो 2 ही थ्योरी है जो हमें अभी पढ़ना है. चलो, नाउ वी विल स्टडी acid base theories. Acids and bases we are going to study now. Okay, so we will start with acids and bases. ये भी मैंने पढ़ा है, just revision ले रही हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे इसने पढ़ा ही नहीं. ठीक है? so, acid school में पढ़ा था. Acids will contain H plus ions, bases will contain OH minus ions. बराबर? Next क्या पढ़ा था? Acids are sour in taste, bases are bitter in taste. Acids will turn blue litmus paper red. कैसे याद रखने का? AB. Acids will turn blue litmus paper red. तो base क्या करेगा? Red litmus paper को blue बना देगा. बराबर? Acids are also corrosive, even bases are also corrosive. They are dangerous. तो ये आपने पढ़ा था स्कूल में. ठीक है? बट ये सारे जो acid base theories है, ये इतने IQ पिक्चर में. And why acids and bases, the theory of acid and bases is very important. Why? How is it related with our day-to-day life? Why we have to study so much about acids and bases? स्कूल में भी पढ़ा था, एक पूरा चैप्टर था केमिकल रिएक्शन, शायद से उसमें भी एसिड बेस के बारे में पढ़ा था. 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, उसमें भी एसिड बेस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर आपने पीएच स्केल शायद से फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा. ठीक है?
Why we have to focus so much on acids and bases? What is the role of acids and bases in our day to day life? Can anyone tell me? जो आपको लगता है, why we have to study this? कोई बोलेगा मुझे क्यों जरूरी है एसिड बेस पढ़ना? क्यों जरूरी है एक कॉमन इंसान को भी पता होना कि भाई एसिड ये है, बेस ये है, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है? क्यों क्यों जरूरी है? Where it is useful in our day to day life? In the kitchen. Okay, very good. In the kitchen it is very important. Anything else? Labs. एक एक करके बोलो. हाँ बोलो, क्या था? Labs. लैब में, ठीक है. लैब में भी क्यों चाहिए? लेकिन लैब में तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ना. मैं डे टू डे लाइफ का पूछ रही हूँ. Cleaning and ओके, क्लीनिंग में लगता है एसिड्स. और हमारे बॉडी में एसिड होता है? हाँ. होता है. कौन सा एसिड होता है? hydrochloric. कौन सा एसिड कहाँ जनरेट होता है? Stomach. स्टमक में जनरेट होता है ना. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो हमारे बदन से शुरू होता है ना. It starts from our own body. See, we are familiar with so many natural acids. जैसे कि आप अभी vinegar sauce खाते हो. What is vinegar sauce? It is 5 to 10% acetic acid. Then we have citric acid, नींबू. जितनी भी खट्टी चीजें हैं उन सब में क्या होता है? citric acid होता है. What is the role of this citric acid? It is sometimes में भी डाल देते हैं अपने खाने में. हमेशा सब नींबू और दही सब होता है. Why? Just to maintain the pH of your food. इसके लिए हम लोग ये सब डालते हैं. दूध को जब भी फटने के लिए रखते हैं तभी हम लोग क्या डालते हैं? नींबू डाल देते हैं ऊपर से. तो वो उसको ये कर देता है. ठीक है. देन इफ यू टॉक अबाउट टैमरिन, उसमें भी क्या होता है? टार्टारिक एसिड होता है. ठीक है. दूध में ये होता है, लैक्टिक एसिड होता है. तो ऑल दीज आर द थिंग्स. टार्टारिक एसिड इज प्रेजेंट इन द टैमरिन पेस्ट, इमली में होता है. So that is very important. Next thing is these acids and bases plays a very important role because milk contain MgOH twice, which is called as milk of magnesia. ठीक है. हम लोग खाने में गुड़ डालते हैं तो गुड़ थोड़ा सा बेसिक होता है. Every morning when you get up, you brush your teeth by using toothpaste. So toothpaste is containing bases which are used to neutralize the acidic strength of your mouth. जब आप सो के उठते हो तो आपके मुंह में एसिड जनरेट होता है बिकॉज वी ईट अ लॉट और फिर हम लोग ऐसे सो जाते हैं. सो इट विल जनरेट एसिड इन योर माउथ. सो इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज दैट. तो हम लोग को एसिडिटी हो जाती है. दैट टाइम वी टेक एंटासिड्स. बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा. एंटासिड्स मतलब हम लोग आधा कप अगर ठंडा दूध पी ले तो आपके स्टमक को काफी आराम मिलता है. नॉट इन द सीवियर एसिडिटी बट इन द एसिड कॉमन से इसमें आराम मिल जाता है. या फिर आप जेलुसिल लेते हो, वो सब लेते हो. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, ये तो हो गई अपनी बात. नेक्स्ट थिंग इज वी हैव सीन एसिड रेन्स. हाँ, डिटर्जेंट्स वगैरह में बेसिस यूज होते हैं. बराबर, सही बोला. ठीक है. फिर एसिड रेन का नाम सुना है आपने? एसिड रेन मतलब ये तेजाब बरसता है, ऐसा नहीं है. एसिड रेन मीन्स व्हाट? व्हेन यू आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन यू आर हैविंग सल्फर डाइऑक्साइड gases more into the environment, it will go and react with the moisture and forms carbonic acid CH2CO3, sulfuric acid H2SO4, and these are all destroying our valuable monument. जैसे कि ताजमहल काला हो गया या बहुत सारी चीजें हैं. आपने देखा होगा करोजन होता रहता है. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक बिहेवियर. ठीक है. ऑल्सो दिस एसिड बेस थियरी इज इम्पोर्टेंट इन द फार्म्स ऑल्सो. तो जो किसान होते हैं उनको पता होना चाहिए कि उनकी मिट्टी का जो सॉइल है उसका पीएच कितना है. क्योंकि देयर आर सम क्रॉप्स व्हिच विल ग्रो वेरी गुड इनटू द एसिडिक सॉइल. देयर आर सम व्हिच विल ग्रो वेरी गुड इनटू द बेसिक सॉइल. तो उनको पढ़ाया जाता है. ठीक है. सो इन दैट केस व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट टेक अ बीकर. इन दिस दे विल पुट देयर सॉइल एंड वाटर. और पीएच मीटर का एक मशीन रहता है जिसके साथ ऐसा एक इलेक्ट्रोड रहता है. वो डायरेक्टली इसके अंदर डालेंगे ना, यहाँ पे पीएच दिख जाता है. या फिर हमारे पास पीएच पेपर होता है. हैव यू एवर सीन पीएच पेपर इन द लेबोरेटरी? अभी तो देखा ही होगा. पीएच पेपर होता है, उसके ऊपर ऐसे कलर्स बने हुए होते हैं और पीएच लिखा हुआ होता है. बट ये हम लोग को एग्जैक्ट नहीं देता. इट विल ऑलवेज गिव यू अ रेंज. समझा? तो इसके लिए एसिड बेस थ्योरी का जानना तो बहुत जरूरी है. ठीक है. योर यूरिन क्या है? एसिडिक के बेसिक है, थोड़ा सा एसिडिक है ना यूरिन. यूरिन इज ऑल्सो स्लाइटली acidic in nature. समझा? So that is why whatever we are using in our day to day life, that is very important. इसलिए हम लोग को एसिड बेस के बारे में पढ़ना काफी जरूरी है. ठीक है. So
फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स जो ये एसिड इलेक्ट्रोड वाला कैसे वर्क होता है वो? हाँ देखो, एक ऐसे मशीन रहता है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले होता है, यहाँ पर एक सॉकेट होता है और एक वायर होता है। वायर के साथ एक इलेक्ट्रोड ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, विच इज एक्चुअली अ ग्लास इलेक्ट्रोड। मतलब देखो ऐसे कांच का बना हुआ रहता है और उसके ऊपर प्लास्टिक का ऐसे कवर रहता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। अब मैंने क्या किया, ये मेरा जो पानी था ना या फिर जो सॉइल वाटर था, इसके अंदर जैसे मैं अंदर डालूंगी, यहाँ पे एग्जैक्ट पीएच आ जाएगा 3.75 या फिर 2.30 या फिर 11.25। तो उससे डायरेक्ट एग्जैक्ट पीएच अपने को पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। ऑफ कोर्स ये मशीन को हम लोग को इससे सॉकेट से कनेक्ट करना पड़ता है। इट इज इलेक्ट्रिकल मशीन जिसको बोलते हैं पीएच मीटर, ठीक है। नेट पे जाके देखोगे तो भी मिल जाएगा, लैब में भी, कॉलेज में सब जगह पड़ा रहता है। आपको शायद एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है 12th में, अगर आपका 12th चालू हुआ तो। आई डोंट नो व्हेन विल इट स्टार्ट, ठीक है। मीन्स तो दिस 12th इज, में होता है इसका? हाँ शायद अभी होता है, एक एक्सपेरिमेंट देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट एक रहता है जिसमें बताते हैं कि पीएच का तो तुम लोगों को है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ योर फूड। कई बार लोग ऐसे, एक एक्सपेरिमेंट है शायद से 12th का जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फूड निकालते हैं कि कौन सा, जैसे अभी हम लोग कोका कोला पीते हैं या फिर केन फूड लेते हैं, सो इन दैट केन फूड इट कंटेन्स फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सो इट इज नॉट गुड, ठीक है। देन यू आर हैविंग कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, इट इज हैविंग H2CO3, इट इज ऑल्सो नॉट गुड। बट इसका पीएच किधर रहेगा, 7 के आसपास रहेगा, वो इधर नहीं रहेगा। जिसका पीएच 0 के पास रहता है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जिसका पीएच 14th के पास रहता है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। लेकिन जैसे जैसे आप 7th के पास आते हो वो वीक हो जाता है, समझा। तो ये काफी वीक है, ये भी काफी वीक है। तो इसके ऐसे 3 ग्राफ आते हैं। तो ऐसे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं आप लोगों को 12th में, है ना। तो नेट पे जाके यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना, मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया। दैट इज व्हाई एसिड बेस मिस थ्योरी इसका इज वेरी नाम क्या वेरी है मिस? इंपॉर्टेंट, बराबर। हाँ, किसका? मिस ये जो किसका है नाम ना, बेटा? ये अपना ये पीएच का। मशीन का, मशीन का। ये हाँ इसका, मिस। इस पे उधर उधर पे डालोगे ना, पीएच मीटर डालोगे ना, पीएच मीटर, और ऐसे डाल दो कि क्या लिखेंगे, फॉस्फोरिक एसिड कंटेंट ऑफ केन फूड, केन फूड डालोगे ना तो मिल जाएगा, समझो। या फिर कार्बोनिक एसिड, जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, बहुत सारे। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स लेके उसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकाला था, फिर आपने बच्चों ने वो बताया था कि कौन सा अच्छा है कौन सा बैड है। जैसे सिंपल सिंपल आप लोग को प्रोजेक्ट होंगे तो ये सब ले सकते हो, बहुत है, बहुत एम्पल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कैन बी डन ऑन एसिड बेस्ड थियरीज, ठीक है। चलो अभी हम लोग वहां पे बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना मुझे, आई विल गिव यू दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, पहला बंदा जिसने एसिड बेस थ्योरी निकाला वाज अरहेनियस। मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस किया है, बट अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं वापस से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अरहेनियस ने क्या बोला, all the substances which will give H plus ions in aqueous solution are called as acids, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस पानी में डालने के बाद अगर H प्लस आयन देता है तो वो एसिड है, और वो कई हद तक सही भी था। He has used HCl, ठीक है। HCl को पानी में डाला, it will form H plus Cl minus। then उसने लिया एसिटिक एसिड CH3COH, he got CH3COO minus प्लस H प्लस। अब यहाँ पे डबल एरो, यहाँ पे सिंगल एरो क्यों बनाया? रिवर्सिबल नॉन रिवर्स। हाँ लेकिन क्यों बनाया, एक रिवर्सिबल दूसरा नॉन रिवर्सिबल क्यों, इसका रीजन बताया था मैंने। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितने ये आयन है उससे कहीं ज्यादा ये प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं, समझा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर रिवर्सिबल एरो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही सेड, अभी इसका ऑपोजिट, द सब्सटेंसेस which are giving OH minus ions in the aqueous solution are called as bases। उसकी ये theory भी बिल्कुल सही थी। He has taken NaOH and then he put it in the water, he got Na plus OH minus, OH minus आ गया, वो बहुत खुश हो गया, wow it is a base। then he has taken ammonium hydroxide, ammonium hydroxide is again a weak base, if we'll put it in the water it will form NH4 plus plus OH minus, समझा। तो इस तरह से he was very happy that he has proved what are acids and bases and he was correct also, ठीक है।
बट उसको जब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तू एसिड बेस का जो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, योर एसिड एंड बेस theory is correct, but it is not applicable for all the substances. Suppose I will take over here ammonia, I will take sodium carbonate, I will take sodium bicarbonate. ये सब के सब बेसिस हैं. कैसे पता चला? हम लोगों ने पीएच पेपर से चेक किया, हम लोगों ने पीएच मीटर से चेक किया. So we got this as basic in nature. Even if we test them with the litmus paper, तो आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा. मीन्स इट इज योर बेसिक सब्सटेंस. तो उसको जब सवाल पूछा गया कि भाई इसमें तो OH माइनस आयंस नहीं है, so he could not answer. That was the drawback of his theory. Theory गलत नहीं थी, theory was correct, but he could not answer. It is not satisfying the all aqueous solution. समझा सबको Arrhenius theory? तो अगर क्वेश्चन आता है write a short note on Arrhenius theory of acids and bases, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आप सबसे पहले लिखोगे Arrhenius theory, acids are the substances which will give you H plus ions in the aqueous solution. Bases are the substances which will give you OH minus ions in the aqueous solution. दो चार examples लिख देना है. And then what is the disadvantage? Ammonia, sodium carbonate and bicarbonate are basic, even they are not containing OH minus ion. नहीं लिखना कुछ नहीं है, सब theory है बच्चों. जब ये आएगा ना अपना डेरिवेशन आएगा ना तभी लिखो. ये सब टेक्स्ट बुक में से पढ़ो, फालतू में लिख के टाइम वेस्ट मत करो. जहाँ पे एकदम गरज रहेगी ना लिखने की, वही मैं लिखाऊंगी. समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आपको बहुत ऐसे लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट. वैसे मैं अच्छे से लिखती नहीं हूँ तो स्क्रीनशॉट लेके कुछ मीनिंग नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन टेक. ठीक है, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आर बेसिस, but they are not showing OH minus ions, and this was the big disadvantage of Arrhenius theory. सबको clear हो गया first theory, Arrhenius theory? Is it very clear? Okay, should I proceed now? ठीक है. Now we will go for the next theory is Bronsted and Lowry theory. ठीक है? Do you know about this theory? Do you remember this theory के भूल गए सब? ठीक है, मैं बताती हूँ. What is Lowry Bronsted theory? ठीक है, दो अलग अलग प्रोटॉन साइंटिस्ट. की इलेक्ट्रॉन मतलब करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड. और ये ना बच्चों आपको बायो में भी लगेगा, और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखो ये थ्योरी बहुत यूज होती है, तो ये तो बिल्कुल भूलना ही मत. देयर वर टू पर्सन, वन इज J.N. Bronsted एंड T.M. Lowry. इन दोनों ने मिलकर थ्योरी बनाई थी इन द ईयर 1923. They were very smart. They observed that bichara Arrhenius is facing problem with H plus and OH minus ions. So what they have said, acids are the substances which are proton donors. ठीक है, proton donors are always acids. Proton donors means H plus ions. Donors are always acids. And ये क्या हो जाएगा, basis क्या हो जाएगा, proton acceptors. ठीक है, proton acceptors are bases. बराबर बोला ना मैंने. proton donors means H plus ions are acids and proton donors are, sorry मैंने उल्टा बोला, proton acceptors are bases, proton donors are acids. ठीक है, अभी हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो आई विल टेक ओवर हियर. सेम एग्जाम्पल लेती हूँ जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था. H2SO4 सॉरी वाटर एंड HCl. इन दिस केस बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा दिख रहा है? अब HCl के मुकाबले में वाटर तो कुछ है नहीं, तो व्हाट इट विल डू, इट विल डोनेट H plus ions to this. It will form hydronium ion H3O plus and Cl minus. समझा? तो अभी ये इसने डोनेट किया ना H plus, तो ये क्या हो गया बच्चों, एसिड 1 लिख देती हूँ उसको, और इसने एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया, बेस 1.
है ना। अब इसको अगर मैं रिवर्सिबल कर दूं तो अब ये डोनेट करेगा, दिस विल बिकम एसिड 2, दिस विल बिकम बेस 2। अब इन दोनों के जोड़ी ढूंढो, एसिड 1 जाएगा बेस 2 के साथ, ये जाएगा इसके साथ, ऐसे ढूंढने का, वाटर का जोड़ी इसका जोड़ी। तो ये उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस पेयर्स। समझा? दे आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस पेयर्स। आया समझ में? क्लियर? ठीक है। ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी थ्योरी में इट शोज कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस पेयर्स। यहाँ मैं रिपीट करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। Okay, again I will repeat this theory, Bronsted and Lowry theory. What is that theory? एक मिनट, हाँ वापस बताती हूँ. What are acids? See, according to this theory, proton donors are acids and proton acceptors are bases. ठीक है. Proton donors are acids. What are protons? H plus. What are protons over here also? H plus. तो जिसने H plus ions donate कर दिया that is acid. जिसने proton accept कर लिया that is your base. इतना clear हो गया? अब देखो, हाँ, I am writing over here दूसरा example लेती हूँ ताकि अच्छे से समझें. Ammonia plus water I will take. ठीक है? In this case what will happen? This will donate proton to this. क्योंकि अभी वाटर और अमोनिया में स्ट्रॉन्गर बेस कौन हो गया? ये हो गया है ना. तो वाटर क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा. तो अमोनिया क्या बन गया बच्चों? NH4 प्लस बन गया एंड वाटर विल बिकम OH माइनस. बराबर. देखो ये डोनर है तो क्या हो गया मेघा? ये दिस इज योर एसिड और ये क्या बन गया? बेस. ठीक है. तो अब देखो, हाँ अभी क्या होगा? इसको रिवर्स करो. व्हेन यू आर गोइंग टू रिवर्स दिस इट विल फॉर्म, ये डोनेट कर दिया तो दिस इज योर एसिड, दिस इज योर बेस. अब इसका पेयर ढूंढो. अमोनिया के साथ कौन गया? ये. इसके साथ कौन गया? ये. तो इनको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस पेयर्स. अभी समझा कि नहीं समझा? इतना बोलो पहले. इज इट क्लियर? नहीं समझा तो वापस बोलती हूँ. इज इट क्लियर? हाँ. श्रुतिका आपका हैंड रेस है, कुछ पूछना है आपको? एकदम आराम से पढ़ो बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम ध्यान से देखो. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होता है? अमोनिया के जैसा कौन दिख रहा है? ये तो नहीं दिख रहा ना. OH माइनस तो नहीं दिख रहा है. कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है. तो ये आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ये आपका कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स. समझा? बहुत सिंपल सा है. हाँ ठीक है. अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम लोग आंसर करना. शायद मैंने पहले पूछा भी होगा कि आई हैव ओवर हियर सी, एक मिनट ना, COOH CH2 NH2, या फिर इसको CHR लिखो, जिसको बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स. अल्फा क्यों? बिकॉज दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन इज अल्फा. अल्फा के फौरन बाद कौन है? अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन्स को पढ़ा होगा ना आपने, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स. बराबर. अब क्वेश्चन ये था कि इन इट्स कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स. अभी इसने क्या किया? H प्लस आयंस इसको डोनेट कर दिया बच्चों. तो दिस विल बिकम acid, this is accepting, this will become base. So it is CH3CO minus CHR NH3 plus. All are agreed with this? ये step समझा? What is happening? H plus will go here, it will become acid और ये base बन गया. बराबर. तो अब क्या हो गया? अभी क्वेश्चन क्या पूछा था देखो, नीट में आया था ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन. आपको बायोमोलिक्यूल्स करके एक चैप्टर है, उसमें था ये क्वेश्चन कि इन
जिसको बोलते हैं ज्विटर आयन। पढ़ा है नाम ज्विटर आयन, सुना है नाम ज्विटर आयन? जब एसिडिक और बेसिक सॉल्ट एक साथ प्रेजेंट होते हैं, बताती हूँ व्हाट इज ज्विटर आयन। व्हेन यू आर हैविंग एसिडिक एंड बेसिक बोथ द ग्रुप्स प्रेजेंट टुगेदर, और जब उसका सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट बन गया ना, इसने H प्लस दे दिया और इसने H प्लस ले लिया, तो जब इस तरह का सॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। वो बाद में हम लोग आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या था ये सुनो। इन द ज्विटर आयन एसिडिक and basic characters are due to dash and dash respectively। क्वेश्चन समझा? एसिडिक, अभी इसमें अगर मैं बोलूं तो एसिडिक कैरेक्टर इज ड्यू टू CH3COOH एंड बेसिक कैरेक्टर इज ड्यू टू NH2। क्वेश्चन क्या पूछा था? इन द ज्विटर आयन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स आर ड्यू टू डैश एंड डैश। व्हाट डू यू थिंक? लेके जाइए चाहिए तो उन लोग को दिखाने के लिए। ओके, व्हाट इज योर आंसर? नहीं समझा? व्हाट इज माय क्वेश्चन? देखो, इन द ज्विटर आयन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स आर ड्यू टू विच आयंस? अभी देखो ना, ये मुझे बताओ, ये एसिड है के बेस है? अभी यहाँ पे CO माइनस इज एसिडिक और बेसिक, ये बोलो। देखो इधर गड़बड़ हो गया कन्हैया, बेस दिमाग लग, हाँ बेस हो जाएगा ना अभी। ये देखो इसने डोनेट कर दिया ना बच्चों, तो ये यहाँ पर एसिड था, लेकिन ये इसका कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं? समझा? ये यहाँ पे बेस था, अभी ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, तो बेसिक कैरेक्टर ये देगा अभी और एसिडिक कैरेक्टर ये देगा अभी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बच्चों ने गड़बड़ की और रॉन्ग आंसर मार्क करके थे। ऑप्शंस क्या थे पता है? एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स आर ड्यू टू CO माइनस एंड NH3 प्लस रिस्पेक्टिवली, या फिर NH3 प्लस CO माइनस रिस्पेक्टिवली, और दो ऑप्शंस इनको मिला के था। आई बात समझ में? सो व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस it can donate H plus ions, that time it is acid, it can accept H plus ions, it is base। लेकिन जब उसका ज्विटर सॉल्ट बनता है तो दिस इज द कॉन्जुगेट, ये क्या हो गया? एसिड था तो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, ये बेस था तो दिस विल बिकम कॉन्जुगेट एसिड। समझा? so that is why acidic character is due to NH3 plus and basic character is due to COO minus। is it clear? ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अंडरस्टूड? ओके क्लियर बच्चों? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी थ्योरी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वी विल डू लुईस थ्योरी। Okay, next we'll start with the Lewis theory. Okay, so what is Lewis theory now? See, अभी लुईस ने क्या देखा? Bases are electron pair donors, okay, and acids are electron pair acceptors।
Okay, what are bases? Bases are electron pair donors and what are acids? Electron pair acceptors. अभी electron pair मतलब दो electrons minimum वो donate करेगा and acids will minimum accept two electrons. Two one pair मतलब two electrons. हाँ हाँ बहुत ठीक है। अभी देखो मैं समझाती हूँ कैसे हुआ। वी हैव ओवर हियर NH3 एंड BF3। ठीक है, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अमोनिया। अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, सो इट इज 2 5। हाइड्रोजन 1, सो इट इज 1। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। समझा? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनाए? 1 2 3 4 5। अभी ये हाइड्रोजन कितना था? दिस हाइड्रोजन विल गिव यू 1 इलेक्ट्रॉन, this will give you 1, this will give you 1. So out of 5, how many electrons have been used? Only 3. ये extra electron है ना? This is called as lone pair of electrons. ठीक है, this is called as lone pair of electrons. समझा इतना? इतना समझा? पहले इतना बोलो, इसके पास एक lone pair extra है कि नहीं? Because out of 5 electrons, only 3 will involved in the bond formation. इतना समझा? Say yes or no. अमोनिया के पास एक लोन पेयर है कि नहीं? सबको समझा कि नहीं? ठीक है, हाँ मतलब ये रिच है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर? अब वी विल गो फॉर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। करेक्ट? बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, so it is 2 3। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, so it is 2 7। this is called as Lewis dot and cross structure. You must have studied in the 11th standard Lewis dot and cross structure. ठीक है, what is the valency of boron? 3, so I will write down 1 2 3। what is the valency of fluorine? 7, so it is 1 2 3। so देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। हाँ, अभी देखो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे फ्लोरीन का कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी कंप्लीट हो गया। बट बोरॉन का देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? गरीब है ना बेचारा, इसके पास है नहीं इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। सो व्हाट इट विल डू, इट विल डोनेट दिस लोन पेयर टू दिस। समझ में आ रही है बात मैं क्या पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, क्या बताना चाह रही हूँ? हाँ, तो अभी इलेक्ट्रॉन पेयर किसने डोनेट किया? अमोनिया ने। सो दिस इज कॉल्ड एज लुईस बेस। समझा? और एक्सेप्ट किसने किया? फ्लोरीन ने, मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ने। सो दिस इज कॉल्ड एज लुईस एसिड। अभी समझ आई बात अच्छे से? ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अभी इसको लिखेंगे कैसे पता है? अमोनिया ऐसे एरो बनाते हैं एंड देन BF3। तो ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझा? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हमेशा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच। ये हमेशा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जितने आप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करोगे उतने एरो बनाने का। अगर 2 पेयर डोनेट करेगा तो 2 एरो बनाने का, 3 पेयर डोनेट करेगा तो 3 एरो बनाने का। समझा? और ये जितने लेगा उसके पास उतने एरो बनाने का। हो गया। So basically, what is Lewis acids? Electron pair acceptors. And what are Lewis bases? Electron pair donors. बस इतना ही है। समझा सबको? I hope it is very clear. If you have a textbook, just go through your textbook for 2 minutes. 2 minutes के बाद I will start at 8:55 पे। ठीक है? टेक्स्ट बुक में से एक बार रीड कर लो। If you have, just go through that. Within 2 minutes I will start. मैं जरा वॉशरूम जाके आती हूँ।
Okay, any doubts बच्चों? I hope this much is very clear. So far what we have seen, acid base theories. कितने acid base theories देखे? एक हो गया Arrhenius theory, दूसरा हो गया Lowry Bronsted theory, और तीसरा हो गया Lewis theory. समझ आ गया ना सबको अच्छे से? Arrhenius ने क्या बोला? Yes. H plus and OH minus ions. इसने क्या बोला? प्रोटॉन. इसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन पेयर्स. बस इतना ध्यान में रखने का. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेसिस. समझा? बस इतना ध्यान में रखोगे, हो गया. और Arrhenius theory इतनी नहीं यूज होती है, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बहुत बार यूज होती है. यूजिंग इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, दैट टाइम इट विल रिक्वायर्ड. ठीक है. नाउ थोड़ा सा अबाउट एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर. सीट में अपन के मैं टॉपिक्स आगे पीछे सिखाओ तो डजंट मीन कि मैं नहीं सिखा रही हूँ. आई विल टीच यू. आगे पीछे कर सकती हूँ डिपेंडिंग अपॉन द इजीनेस ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ कैसे होता है टेक्स्ट बुक में डिफिकल्ट टॉपिक पहले दिया हुआ रहता है, इजी बाद में दिया रहता है. तो आई विल टीच यू इजीएस्ट फर्स्ट एंड देन डिफिकल्ट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. अभी मुझे बताओ एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एम्फोटेरिक? किसी को पता है? शायद थोड़ा बहुत पता होगा. एनीथिंग अबाउट एम्फोटेरिक नेचर? देखो एसिडिक सबको पता है, वाटर जब बेसिक एसिड और सबको बेस पता है, में They न्यूट्रल भी both सबको पता है. shows both properties of acid as well Very as good, base. very good, very good, correct. Amphoteric means it will show acidic as well as basic properties both. So it is called as amphoteric nature. ठीक है. अभी देखो, इसके पहले मैंने आपको लॉरी ब्रॉन्स्टेड में एग्जांपल दिया था. एक मिनट, हाँ बताती हूँ. ठीक है, देखो कैसे था. I will write down here H2O plus HCl and H2O plus ammonia. इस केस में देखो it will donate, so this will become base, this will become acid. अब मैं आगे वाला नहीं लिख रही हूँ. ठीक है. In this case water will donate, so water will become acid and this will become base. So can I say water is behaving amphoteric in nature? Clear? What is amphoteric nature of water? Water when reacts with a stronger acid like HCl, so it will form amphoteric nature, and then when you are having ammonia, so it will behave acidic in nature. So that is called as amphoteric nature. समझ आ गया इतना अच्छे से? कोई डाउट है किसी को? अभी ionization of water, ionization of acids and bases पढ़ाती हूँ. Suppose I'm writing over here HA. ठीक है, चलो अभी कैसे होगा ब्रेक? H plus and A minus. Acid will dissociate as H plus and A minus. ठीक है. So what will form? Ka is equals to concentration of H plus, concentration of A minus upon concentration of H. याद है law of mass action पढ़ा होगा थोड़ा कहीं पर 11th standard में. What is law of mass action? हाँ, तो क्या होता है? It is the ratio of concentration of your product divided by concentration of your reactant. तो ये जो Ka है ना बच्चों, Ka, this is called as this is called as dissociation constant. ठीक है, dissociation constant of acid. ये समझा अच्छे से? अब कैसे याद रखना है कि when you are having greater value of Ka, stronger is the acid. अभी ये भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं. They will give you Ka values and they will ask you to arrange strong acids in the increasing order, decreasing order. और बच्चों लोग को समझ में ही नहीं आता है कि what is Ka. आपने ऑर्गेनिक में चैप्टर पढ़ा होगा ना, एसिड कौन सा चैप्टर था वो? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड एसिड्स. हुआ है क्या वो चैप्टर ऑर्गेनिक वाला? उसमें, हाँ उसमें पढ़ा होगा ना एसिडिक कैरेक्टर. सो इट डिपेंड्स अपॉन Ka. इतना समझा सबको अच्छे से?
So Ka stands for dissociation constant of acid. Correct? So greater the value of Ka, stronger is the acid. ये कभी भूलना ही नहीं. Similarly, if I have BOH, this will break up as B plus and OH minus. तो क्या लिखेंगे इधर? Kb is equals to concentration of B plus, concentration of OH minus divided by concentration of BOH. ये समझा? जितने भी रिएक्टेंट है ना वो ऊपर लिखने का, सॉरी जितने भी प्रोडक्ट है वो ऊपर लिखने का, जितने भी रिएक्टेंट है उसको नीचे लिखने का. ठीक है. सो व्हाट इज दिस केबी? केबी इज, अभी ये क्या हो जाएगा अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड था, so this is dissociation constant of base. हाँ वापस रिपीट करती हूँ मेगा, डोंट वरी. See what I said, I have acids over here. Acid will break up as H plus and A minus. Applying law of mass action. What is law of mass action? It is the ratio of concentration of all the products to the concentration of reactants. ठीक है. So this Ka stands for dissociation constant of acid. ठीक है. तो मैंने क्या बोला? Greater the value of Ka, stronger is the acid. समझ आया ये? वैसे ही we have BOH that will form B plus and OH minus. So Kb is equals to this divided by this. समझा? तो अभी ये Kb क्या हो गया? Dissociation constant of base. अभी यहाँ पे भी greater the value of Kb, stronger is the base. जितना बड़ा Kb का वैल्यू होगा उतना stronger उसका base होगा. ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन है, Ka values are given, you have to arrange them in the increasing order of their acidic strength. ठीक है. तो 1.5 into 10 raised to minus 30, 2.7 into 10 raised to minus 17, 8.9 into 10 raised to minus 20, and 10 into 10 raised to minus 35. ये K values मैंने आपको दिए हैं. You have to arrange them. ऐसे लिख देती हूँ. A, B, C, D. You have to arrange them in the increasing order of their acidic strength. Increasing order मतलब छोटे से बड़ा, मतलब सबसे weak acid कौन सा है वो सबसे पहले आएगा, फिर stronger acid, उसके बाद stronger and then strongest. सबको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? पहले इतना बोलो. Have you understood the question? You have to arrange them in the increasing order of their acidic strength. You, मैंने क्या बताया? Greater the value of Ka, stronger is the acid. ठीक है. चलो, you will get 2 minutes to answer this. You can write privately in my chat box. Welcome Mega, no problem. You will get 2 minutes for that. मैं अभी खुद को म्यूट करती हूँ. आंसर लिखो chat box में. Let me see. I'm getting some answers, पर सबका नहीं आया. चलो फटाफट बताओ आंसर. 9-6 को we will discuss.
चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड. हाँ, अब मेरे को देख के थोड़ी सी हैरानी भी हो रही है, कुछ लोगों ने गलत आंसर भी दिया है. मुझे ये बताओ, ये नंबर मैटर करते हैं देखने के लिए कि ये नंबर मैटर करते हैं देखने के लिए? मैथ्स. मुझे बताओ, 10⁻30 -17 -20 -35, इनमें सबसे बड़ा कौन है? हाँ, -70. वेरी गुड. जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना बड़ा, उतना वो छोटा हो जाता है. तो -17 सबसे बड़ा है. मैंने क्या बोला? इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो बी सबसे लास्ट में आएगा ना. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ जाना था. तो क्या आएगा? डी, ए, सी, बी. ये करेक्ट ऑर्डर है. समझा? अभी देखा ऐसे गड़बड़ होती है. हाँ, कुछ लोगों ने सही आंसर भी किया है. मुझे पता है कि यू ऑल नो द आंसर, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत गड़बड़ होता है. इंक्रीजिंग मतलब, हाँ समझा अभी? इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा. इज इट क्लियर नाउ? देखो, ऐसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग का रॉन्ग हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो. क्लियर? आगे बढ़े. चलो अभी आगे थोड़ा और पकाती हूँ तुम लोग को. अभी नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट अभी इसका उल्टा. पीएच क्या रहता है? pH is negative log to the base 10 concentration of H plus ions. ये सबको पता है. What is POH पढ़ेंगे बाद में, बस अभी बता रही हूँ. Negative log to the base 10 concentration of OH minus. We will study this later on. Don't worry, I'm just telling you. अब देखो, negative log मतलब is it like this 1 upon log? नहीं, हाँ 1 upon log concentration of H plus ions. तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ H plus ions होंगे तो pH कम होगा. बराबर है कि नहीं? if you have more, inversely proportional हो गया ना बच्चों. if you are having pH high मतलब H plus ions कम थे. if you are having pH less मतलब H plus ions ज्यादा थे. इसका opposite हो गया. तो वैसे ही we have something called as pKa, which is negative log to the base 10 of Ka. And what is pKb? It is negative log to the base 10 of Kb. अब उल्टा बोलने का. greater the value of pKa, weakest is the acid. greater the value of pKb, weakest is the base. समझा? ठीक है, ये इसका नेगेटिव लॉग है. अगर Ka ज्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्गर एसिड आएगा. Kb ज्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्गर बेस आएगा. बट इफ यू आर हैविंग pKa greater, so it is weakest acid, and pKb stronger, तो इसका weakest base. समझा अभी? This part is clear or not? Just tell me that first. Is it clear? हाँ ठीक है. अभी मैं ना तुम लोगों को pKb वैल्यूज दे रही हूँ कुछ कंपाउंड के. आपको अरेंज सी व्हाट आई सेड हियर. आई जस्ट रिपीट संचिता. pH is negative log of H plus ions. अभी नेगेटिव बोला मतलब इसका रिवर्स हो गया ना बच्चों. तो वैसे ही क्या हो गया? pKa is the negative log of Ka, so it is reverse of this. pKb is also negative log of this. रिवर्स हो गया इसका. करेक्ट. so greater the value of pKa, एसिड वीक हो जाएगा. उल्टा. बट अगर Ka ज्यादा हुआ तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो Ka और Kb का वैल्यू देखने का. अगर ये ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. लेकिन अगर Pk और Pkb का वैल्यू ज्यादा है तो वीक एसिड एंड वीक बेस. अभी समझा संचिता? क्लियर? हेलो. नाउ आई एम गिविंग यू सम इस वैल्यूज ऑफ लास्ट सेंटेंस Pkb. क्या बोला आपने? कौन सा वाला? ये Pk और Pkb वाला बोलो. हाँ मिस. देखो अभी ये समझा कि नहीं? पहले इतना बोलो. K का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग रहता है. Kb का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो एसिड सॉरी बेस अपना वीक रहता है. ये क्लियर? ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना अभी, क्योंकि देखो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. माइनस लॉग लिखा है मैंने, प्लस लॉग नहीं लिखा है. माइनस लॉग मतलब 1 बाय होता है ना. तो इफ यू आर टेकिंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ pKa, आपका एसिड वीक रहेगा ना. जितना बड़ा pKa का वैल्यू उतना वीक आपका एसिड. जितना बड़ा pKb का वैल्यू उतना वीक आपका बेस. ये इसमें पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में. pK एंड pKb एसिडिक स्ट्रेंथ. समझा? समझा कि नहीं समझा? पहले इतना बोलो. हाँ मिस समझा. हाँ समझा. चलो अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ. आई एम राइटिंग हियर 3.7 into 10 raised to minus 5, 18 into 10 raised to minus 12, then 3.90 into 10 raised to minus
4 and then 8.7 into 10 raised to minus 10. इसको आपको अरेंज करना है in the decreasing order of acidic strength. Decreasing order मतलब बड़े से छोटा अरेंज करना है, और ये पीकेबी दिया है मैंने, याद रखो। तो जितना बड़ा पीकेबी का वैल्यू होगा उतना छोटा आपका बेस होगा, उतना वीक आपका बेस होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, अरेंज करो और आंसर बोलो। अगेन यू विल गेट 2 minutes। 9:15 को हम लोग डिस्कस करेंगे, सोचो एंड देन गिव योर आंसर, ठीक है? Okay, now I think everybody has given correct answer. हाँ, बराबर। अरे अभी भी तुम लोगों ने गड़बड़ किया, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग को मैथ्स नहीं आता है रे बाबा, मैथ्स अभी सिखाओ मैं तुम लोग को। ये बताओ, अभी ये तो नहीं देखेंगे ना हम, ये देखेंगे, करेक्ट? हाँ मिस। चलो अभी बोलो, सबसे बड़ा मिस नंबर हम पहले लोग को सिखा माइनस रहे हैं। हाँ बराबर, पहले कौन सा लिखेंगे? क्या बोला? डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा? बड़े से छोटा। हाँ, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है वो ढूंढेंगे ना। पर अभी पीके भी देखना है वैल्यू। पीके भी जितना बड़ा रहेगा उतना, सॉरी, पीके भी जितना कम रहेगा उतना स्ट्रॉन्गर आपका बेस रहेगा, बराबर ना? यस मैम। पीके भी जितना बड़ा रहेगा, सॉरी, जितना कम रहेगा उतना स्ट्रॉन्गर अपना बेस रहेगा। ओ शिट, मैंने उल्टा लिखा, उतना स्ट्रॉन्गर अपना बेस रहेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है ये बताओ? बी मैम, बी। बी वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बराबर? मिस हाँ मिस। बी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अपने को अरेंज कैसे करना था? डिक्रीजिंग वाला। तो पहले बी आएगा, बाद में डी आएगा, डी,
A हाँ and फिर C. सी, हाँ फिर ए एंड सी बराबर। अभी भी बहुत सारे लोगों ने ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का गड़बड़ किया है। मत करो बच्चों, ये 4 मार्क्स के लिए आता है, देखो कितना इजी है। समझा सबको अच्छे से? बोर्ड्स में आता है या JEE नीट में? दोनों में। अभी जेडब्ल्यू नीट में आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, और बोर्ड्स में आएगा तो 1 मार्क्स के लिए आएगा, बट पूछते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। इवन ऑर्गेनिक में भी है, ये पढ़ा है ना ऑर्गेनिक में, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में सर ने थोड़ा पढ़ाया होगा, जब तक मतलब पहुंचे होगे वहां तक एसिडिक, वहां तक वहां पे है ये, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही वहां पर यूज किया गया है। समझा अच्छे से? किसी को कुछ डाउट है अब तक? Okay, now we will go for the next topic, ionization of water. What is ionization of water? I will write on water will dissociate as H plus and OH minus. बहुत simple है. So what I will do now, I will just write on K. Applying law of mass action, concentration of H plus, concentration of OH minus divided by concentration of H2O. This is clear. Ionization of water, H2O is equals to this will give you H plus and OH minus. बराबर? So K is equal. अभी मैंने A और B नहीं लिखा because it is amphoteric in nature. That is why I am not writing over here A and B. So it is H plus OH minus upon H2O. Correct? अब देखो इधर पे multiply करो, K into concentration of water, K into concentration of water, that is equals to concentration of H plus and concentration of OH minus. इतना समझा? What I did? Only water will go here. So this is written as Kw, which is called as ionic strength of water or ionic constant of water. Kw लिखते हैं. This is H plus and OH minus. बस इतना ही समझा? So ionic product of water, इसको बोलते हैं ionic product of water, is written as H plus and OH minus ions. I hope this much part is very clear to you all. किसी को कुछ पूछना है तो you can ask. इसके बाद मैं एक छोटा सा डेरिवेशन दिखाती हूँ and then we will stop. Clear? मिस ये Ionization of रिवर्सिबल water. है तो मत हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि मतलब ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है? ये क्या बच्चा, ये देखना, अभी ये हम लोग क्या ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम है ना अपना, तो जो राइट हैंड साइड पे है वही तुम्हारा प्रोडक्ट है, जो लेफ्ट पे है वही रिएक्टेंट है। अभी यहाँ पे दिस इज रिमेनिंग इन द अनआयनाइज्ड फॉर्म, और वाटर का अनआयनाइज्ड फॉर्म हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर KW लिखते हैं, विच इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। समझा? आगे है इसके ऊपर और भी हाँ बहुत सारे मिस समझा। डेरिवेशंस। हाँ, तो ये सिर्फ इतना याद रखने के लिए बोला है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड बाय ये लेके करते हैं, तो वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, वो KW बन के सिर्फ H प्लस और OH माइनस बन जाता है, बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर ना, तो जितने H प्लस आयंस रहेंगे सिमिलरली उतने अमाउंट के OH माइनस आयंस भी रहेंगे, बराबर ना? दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर? अंडरस्टूड? लिखना है तो लिख लो। डू यस। यू वांट टू राइट इट डाउन? हाँ लिख लो, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन। 2 minutes I will give you. मैम थोड़ा राइट शिफ्ट। क्या हुआ दिख रहा है? सॉरी हाँ वो अभी स्टैंड थोड़ा टेढ़ा हो गया। हाँ लिख लो फटाफट। KW is called as ionic product of water.
हो गया मैम। ओके क्लियर। चलो अभी हम लोग, हाँ ठीक है, डन ना, ठीक है। चलो अभी मैं तुम लोग को एकदम छोटा सा एक डेरिवेशन पढ़ाती हूँ, टाइम मिला तो लिखना, नहीं तो कल लिखना, ठीक है। चलो वी विल डू नाउ ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। जस्ट अ मिनट ना बच्चों। नाउ वी विल डू ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, अभी एक चीज याद रखो, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ठीक है, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो मैं आपको एसिड वाला सिखाऊंगी, बेस वाला आप खुद करोगे। ठीक है, वेरी सिंपल इट इज, जस्ट पे अटेंशन। क्वेश्चन कैसे आएगा, डिराइव ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, 4 मार्क्स। डिराइव ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेसिस, 4 मार्क्स। बहुत ही सिंपल है। Ostwald is the name of scientist. So I will write on here, consider an acid HA which dissociates as, already मैंने तुमको ना कल पढ़ाया है तो तुम लोग को आएगा ये, HA will dissociate as H plus and A minus, therefore अप्लाइंग चाहिए तो यहाँ पे लिखो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, जितनी पंचायत तुम लोग को लिखना है लिखो, अप्लाइंग लॉ ऑफ mass action, we get K is equals to concentration of H plus A minus divided by HA। इतना हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, कल सिखाया था वैसे ही करना है। ठीक है, आई विल अगेन राइट ऑन HA, दिस इज H प्लस एंड A माइनस। तो अगर ये मिस वो ए अल्फा क्या है, है? ये बच्चा H प्लस एंड A माइनस, जैसे हम लोग HCl लिखते हैं तो H प्लस डालना जरूरी है क्योंकि वो एसिड है, तो Cl माइनस कौन सा भी, मतलब A माइनस कौन सा भी अनायन हो सकता है, समझा। ओके मिस, हाँ मिस। हाँ अभी जैसे देखो मैं एसिड बोल रही हूँ ना, एसिड लिखा है तो एसिड के लिए तो H होना कंपलसरी है क्योंकि H प्लस आयन तो जरूरी है। तो A कौन सा भी अनायन हो सकता है, Cl माइनस, F माइनस, कौन सा भी एसिड। ठीक है, इफ आई विल राइट ऑन हाँ अल्फा मिस, इज डिग्री समझा। ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो सब ये अग्री करते हैं कि 1 माइनस अल्फा होगा, कल ही बताया था मैंने, बराबर कि नहीं, पहले इतना बोलो। इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा होगा ना। मैक्सिमम डिसोसिएशन कितना होता है, 1 माइनस अल्फा। इज इट क्लियर। हाँ ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन जो है, इफ आई एम टेकिंग कॉन्सेंट्रेशन एज C, इफ concentration is C, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा इंटू सी, दिस इज अल्फा इंटू सी एंड अल्फा इंटू सी। अब ये बराबर है, समझ आ गया, कल ही किया था हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वाले वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट करो, बहुत इजी है, देखो 1 मिनट में तुम लोग को आ जाएगा। K इज इक्वल्स टू H प्लस की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू सी, A माइनस की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू सी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू सी। यहाँ तक किसको नहीं समझा, पहले इतना बोलो। पहले क्या किया, एसिड लिया, डिसोशिएट किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा, फिर ये जगह अल्फा अल्फा लिखा, ये 1 माइनस अल्फा लिखा और सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलो सॉल्व करेंगे मैथ्स। अल्फा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी, सी और एक सी कैंसिल हो गया, तो अभी मुझे क्या मिला, अल्फा स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये हो गया के ए। बट अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा वीक एसिड है ना, वीक एसिड है कि नहीं, तो ये 1 माइनस अल्फा बहुत कम रहेगा ना, डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो गया। देखो पॉइंट को समझो कि फॉर वीक एसिड्स 1 minus alpha is much 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 lesser than 1, is it correct। क्योंकि much lesser than 1 होता है ना, 20% 30% ऐसा रहता है, so it is much lesser than 1, is it correct or not, यस all are मैम। agreed with this। हाँ तो ये जो टर्म है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, therefore 1 minus alpha is negligible। तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया, कि A is equals to अल्फा स्क्वायर इंटू सी। ये एक इक्वेशन हो सकती है जो हम न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए बाय सी। अल्फा स्क्वायर ऐसे रखा, के के नीचे सी आ गया, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाय सी, ये दूसरा इक्वेशन हो सकता है। और अल्फा इज इक्वल्स टू के ए इंटू वी भी तो हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कम,
उतना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, है ना। अगर मैंने पानी डाल दिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा ना। तो वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो Ka by C कैन ऑल्सो बी रिटन एज Ka into V। ये है ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ। बोलो क्या डिफिकल्ट था इसमें? मिस वो पेज हाँ, दिखाना, कौन सा वाला पार्ट? वो पेज वाला। ये पेज वाला वापस बताती हूँ, पूरा ही वापस बताती हूँ। सी, वी आर डूइंग ओवर योर ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ। बराबर है, 2 ही मिनट है, ये लिखो मत, मैं नेक्स्ट टाइम वापस से सिखाऊंगी, ठीक है। ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ, so it is for weak acid and weak bases. Consider the acid Ha, it will dissociate as H plus and A minus। फिर अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन करके इतना लिख दिया। यहाँ तक समझा ये पार्ट? से यस और नो फटाफट एकदम। अभी हम लोग ने क्या लिखा, अगर डिसोशिएट होता है तो ये अल्फा होता है, ये भी अल्फा होता है, तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि मैक्सिमम डिसोसिएशन 1 होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, पर ये स्ट्रॉन्ग तो है नहीं ना, वीक है, तो बहुत सारा इसमें 1 माइनस अल्फा बचेगा। बराबर। चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर C कॉन्सेंट्रेशन है तो ये तीनों टर्म को हम लोग C से मल्टीप्लाई करेंगे। कल भी पढ़ा था देखो, X इंटू अल्फा इंटू C, Y इंटू अल्फा इंटू M किया था ना हम लोगों ने मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो ये H प्लस का वैल्यू कितना आया, अल्फा इंटू C। ये देखो A माइनस का वैल्यू कितना आया, अल्फा इंटू C। सब्स्टिट्यूट किया और इसका वैल्यू कितना आया, 1 माइनस अल्फा इंटू C। तो अल्फा स्क्वायर, देन ये हो गया C स्क्वायर अपॉन दिस, ये कैंसिल करके ये वाला पार्ट आ गया। अब मैंने क्या बोला, 1 माइनस अल्फा इज नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत छोटा है ना, क्योंकि 1 से बहुत छोटा है। तो व्हाट आई विल राइट डाउन हियर, बिकॉज इट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका अल्फा तो वैसे ही बहुत कम रहता है, ठीक है, तो इट इज नेग्लिजिबल। तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया अभी, अल्फा स्क्वायर इंटू C। अब अल्फा को इधर ही रखा और ये K बाय C हो गया, ये नहीं चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ये हो गया। concentration and volume are inversely proportional, that is why alpha is equals to K into V। समझा अभी? अभी बेस में क्या होता है पता है, सब सेम रहता है, खाली K की जगह पर K भी रहता है, बाकी सब सेम रहता है। और इक्वेशन कैसे लिखते हैं, BOH लिखते हैं, B प्लस एंड OH माइनस, बस इतना ही चेंज है, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। आई होप टुडेज लेक्चर इज वेरी क्लियर फॉर यू ऑल। एनी क्वेश्चन मत लिखो, मैं नेक्स्ट टाइम वापस लिखाऊंगी अच्छे से। इज इट वेरी क्लियर बच्चों? इजी है चैप्टर? ओके ठीक है, चलो see you next time, please do your homework, try to solve, ठीक है। चलो bye bye, take care, good night, Bye, thank miss. you so much for sitting nicely, बाय मिस। bye 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 bye, I'm leaving, हाँ चलो, end for all करती हूँ।